चलो come on, let's begin. 1/1/2016. Mr. Khan sold personal property for rupees 1 lakh and invested 75,000 in the running business. Mr. Khan sold personal property of rupees 1 lakh and invested 75,000 in running business. Can you tell me, Jainam, personal property sold का कोई entry आएगा? No, sir. No. Then what entry will come over? Cash account debit to capital. Very good. देखो पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा खरीदा, वी आर नॉट बॉदर्ड, राइट. बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है. कितना आ रहा है? 75,000. कौन ला रहा है? ओनर ला रहा है. तो बिजनेस के बुक में क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू कैपिटल अकाउंट, ओनर लाया. कितना लाया? 75,000. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Cash account debit to capital account, 75,000 being capital introduced. Being capital introduced. All of you clear with this? Personally property बेचा खरीदा कुछ भी करो, we are not bothered. Okay. Business में क्या हुआ? पैसा आया and owner is the giver, so credit the giver. Next one. Second one, he received a birthday gift of 5,000 from mother-in-law and deposited the same in the business bank account. He got a gift from his mother-in-law और उसने वही पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया. फोरम नथानी, व्हाट डू यू थिंक? जो उसको गिफ्ट मिला है, विल यू पास एनी एंट्री फॉर दैट? Cash account to capital account. Should it be cash account to capital account? Read properly. It is a gift. Okay. फिर आगे पढ़ो. Birthday gift of rupees 5,000 from his mother-in-law and deposited the same in the business bank account. Bank account to capital. Right. Can it be cash to capital or should it be bank to capital? Are you getting the point over here? What is happening? Owner directly invested the money in the business bank account, right? तो पैसा डायरेक्टली ओनर के पास से बैंक में गया. याद है वो 3 पार्टी ट्रायंगल बताया था? तो यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट्स होंगे? कैश एंड कैपिटल की बैंक एंड कैपिटल? बैंक. अगर बिजनेस में आ रहा है तो कैश एंड कैपिटल, सीधा बैंक में जा रहा है तो बैंक एंड कैपिटल. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? So 2nd of January 2016, your entry will be bank account debit to capital account. Will you pass any entry for that personal gift वगैरह वगैरह जो मदर इन लॉ से आया? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. ओके, बिजनेस का कोई मदर इन लॉ ओनर का होता है, तो गिफ्ट वगैरह का कोई एंट्री नहीं है. इट इज सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बैंक लिख सकते हो या सिंपली कैपिटल इंट्रोड्यूस भी चलेगा. बीइंग कैपिटल money deposited in bank. मनी डिपॉजिटेड इन बैंक बाय द ओनर, ऐसा लिखना जरूरी है. ओके, क्योंकि ओनर डायरेक्टली ला रहा है. अगर बिजनेस डिपॉजिट करता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता. बिजनेस डालता तो बैंक और कैश, बैंक इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग. ये ओनर डायरेक्टली बैंक में डाला है. चलो क्लियर यहां तक? ऑल ऑफ यू? रुचि को समझा? नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फोर्थ को हो रहा है, फोर्थ को सॉरी सेकंड को वापस हो रहा है. सेकंड को he borrowed 10,000 rupees from his friend Mr. Apte. He borrowed 10,000 rupees from his friend Mr. Apte at the rate of 12% interest per annum. Varun Bonale. Varun, can you tell me the entry for this? Cash account debit to Apte's loan account. Perfect, very good. देखो क्या हो रहा है, borrowed दिया हुआ है, वहां पे बत्ती चमकना चाहिए कि that it's a loan. All of you got that? So cash आ रहा है बिजनेस में, debit what comes in and borrowed मतलब Apte is the giver, so credit the giver.
सो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी अपनी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिखना, 12% अपटेज लोन अकाउंट, 12% अपटेज लोन अकाउंट। अब ये 12% का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? We have to pay interest at the rate of 12%, and we Right. are borrowed on that condition. Exactly. That 12% is the rate of interest. Did you understand? लोन लिया है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई कोई पूछ रहे थे इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तो अभी आ जाएगा। यहाँ से इस सम से हम लोग इंटरेस्ट का भी एंट्रीज करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस दिन लोन लेते हो क्या उसी दिन इंटरेस्ट? No. You use the money, right? For 1 month, 6 months, 1 year, and then at the end of it you pay interest, right? So right now we are just borrowing the loan. So don't get confused कि अभी इंटरेस्ट का क्या करना है, कुछ करना है कि नहीं। तो भैया अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो आपने सिर्फ लोन उठाया है, राइट? Let the period pass 1 month, 6 months, and after that we will pay interest. Okay? वो कैसे पे करना है? It all depends between the terms of lender and borrower. लेंडर बोलता है मेरे को 3-3 महीने में इंटरेस्ट देना, तो हमें 3 महीने में देना पड़ेगा। लेंडर बोलेगा अपने को 1 मंथ में इंटरेस्ट देना है, तो 1 मंथ में देना पड़ेगा। कोई बोलता है ईयर एंड पे देना, तो हमें ईयर एंड पे देना पड़ेगा। ओके, तो आपको इंस्ट्रक्शन क्लियरली क्वेश्चन में दिए जाएंगे, आगे जाके पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इस समय आई थिंक मंथली है, तो एंड में आपको पता चलेगा मंथली। Annum मतलब yearly में होता। नहीं, that is a way of giving any percentage sign of interest. Interest is always taken as PA, per annum. आपने स्कूल में सीखा होगा शायद, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड हाँ। ये लिखा होता है, तो वो रेट हमेशा पर एनम की होती है। ठीक है, आपको डिपेंड करता है पर मंथ देना है, तो आप करते थे ना PNR 1/12, 2/12, 3/12 PNR वाला फॉर्मूला। Yes. ओके, सो इंटरेस्ट का तो वे ऑफ गिविंग है कि PA, पर एनम ही होता है, वो रेट आपको पीरियड के हिसाब से करना पड़ता है। ओके, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अमाउंट इज आई थिंक 10,000 का लोन हमने बोरो किया है, 10,000 का लोन बोरो किया है। दिस इज बीइंग लोन taken from Apte at the rate of 12% interest per annum. Okay, being loan taken from Apte. Comfortable यहाँ तक प्रसिद्धि जी? Next one. Fourth को हो रहा है, purchased goods worth 5,000 less 10% TD from Mr. Naveen. Purchase goods of 5,000 less 10% TD from Mr. Naveen. Tanya? 5%. Tanya Veera. Is the transaction on cash or credit? Tanya? Is the transaction on cash or credit? Sir, cash. Cash. Sure. 5% less credit. So purchase account debit to Naveen account. Are you sure it was cash or credit? ये समझ में आ गया आपको? हाँ. Why it was credit? Because पार्टी का नाम 5% less TD. नहीं TD तो ठीक है, पार्टी का नाम दिया है ना नवीन, नवीन अकाउंट कुछ नहीं दिया है, राइट? तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं है, फॉर कैश फॉर चेक, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो व्हाट विल बी योर एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू Naveen account, and what will be the amount? 4,750. All of you have understood that? Being goods purchased from Naveen. Being goods purchased from Naveen. 4th of January. ठीक है, you can go back on mute. Perfect. Hope all of you clear? बढ़े आगे? चल. Next one. 4th को ही हो रहा है वापस. 4th of January 2016. Purchased a machinery worth 48,000 from HMT and issued a check for the same. Read properly. Why are we not clubbing all these transactions? See, when we club the transaction, when there is a common debit or a common credit, right? So यहाँ पे आपको कुछ common debit credit दिख रहा है?
The date is common now. नहीं नहीं, अरे बेटा डेट तो कॉमन होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन को क्लब करने के लिए डेबिट और क्रेडिट पार्ट में कुछ कॉमन होना जरूरी है ना। इन दो एंट्रीज में कुछ कॉमन था क्या? नहीं था, राइट। कॉमन डेबिट मतलब कैश कॉमन होना चाहिए, क्रेडिट में कुछ कॉमन होना चाहिए, कॉमन अकाउंट, टॉकिंग अबाउट द कॉमन अकाउंट, देन यू कैन क्लब। अगर कॉमन डेबिट क्रेडिट नहीं है तो डोंट क्लब, देन शो इट सेपरेट। राइट, सर वो फर्स्ट और सेकंड वाले में है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो डेट अलग है ना मेरे भाई। अच्छा डेट अलग है तो क्यों क्लब करना है? नेक्स्ट वन, 4th of January को एक और हो रहा है। Purchase machinery worth 48,000 from HMT and issued a check for the same. Okay, spent rupees 2,000 on installation of the above machine. Okay, एकदम ध्यान से पढ़ना। Purchase machinery from HMT 48,000 for check, issued a payment check for the same. Spent rupees 2,000 on the installation of the above machinery. Jia Savla, can you tell me what should be the pura entry for this? Machinery account debit to bank account. Pura? Yeah. Sure. Pura bank? Yes. Because it is issued a check for the same. Right. और फिर आगे क्या दिया है? And installation charges are put. Okay, okay. So machine की total value? 50,000. Correct. मशीन की टोटल वैल्यू 50,000, सो मशीनरी आ रही है 50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से नहीं दिखेगा, ये बात तो सबको समझ में होगी। कॉस्ट कंसेप्ट, ओके। टू बैंक पूरा 50,000, आर यू पेइंग एंटायर 50 बाय चेक? रीड अगेन। Yes. Would anyone like to tell me? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। हाँ देखो ध्यान से पढ़ो, जो मशीन खरीदा है ना 48,000 का, वो चेक से। फिटिंग चार्जेस अलग है ना। हाँ, फिटिंग चार्जेस वो वर्कर लेबरर को आपने घर पे आके, घर पे क्या सॉरी फैक्ट्री में आया होगा फिट करने के लिए, उसको आपने कैश में पे कर दिया है फिटिंग चार्जेस। ओके, तो रीड द स्टेटमेंट। दो पार्ट है ना, दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मशीनरी के लिए आपने चेक इश्यू किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस के बाजू में कुछ दिया है चेक? इज देयर एनी इन्फो गिवन अबाउट इंस्टॉलेशन चार्जेस? No. That means they are paid in cash, they are paid by cash. So machinery account debit to bank account to cash account, being machinery purchased and installation charges paid. Being machinery purchased and installation charges paid. All of you comfortable? पूरा चेक नहीं है, पार्टली बैंक है, पार्टली कैश है, थोड़ा चेक है, थोड़ा कैश है। यही अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस और ऑल्सो पेड बाय चेक ऐसा दिया होता तो फिर पूरा बैंक, तो फिर पूरा Whole बैंक, bank account. then it would have been machinery to bank, right? Maya ji, yes. Next one, 5th one, sold goods worth 10,000 at CD and 2% CD terms if the payment is received by the end of January to Mr. Bose. Read it again. Sold goods worth 10,000 at 10% TD and 2% CD terms if payment is received by the end of January. Currently, the sales is on credit. Sir, only now we have to current do Go only CD this नहीं not आएगा। cash discount. हाँ, right now it is on credit or cash. Right now it is on Credit. what is that? का terms and all, then उसका मतलब? सर मतलब अगर उसने पे किया तो सीडी हम लेंगे। हाँ, ये उसका कंडीशन है कि अगर वो जनवरी से पहले पैसा दे दे तो हम सीडी अलाउ करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो समझ में आया सबको? टर्म्स का मतलब समझा? टर्म्स। तो यहाँ पर राइट नाउ यू आर सेलिंग फॉर कैश और क्रेडिट? Credit. 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 So which discount should come? Which discount? only TD. Only TD. See, I am showing you the calculations over here. You can show it behind now. आप सम के एंड में दिखा सकते हो, ठीक है? इधर खाली एंट्रीज दिखा सकते हो। सम के is it okay if we do mentally? मेंटली भी चलेगा, बट मेंटली आई विल एडवाइज अवॉइड, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक होने का चांस है। तो डैम श्योर मेंटली भी कर सकते
डायरेक्टली भी So हर एक sum के पेज के नीचे if you make a line for working, will that be okay? हाँ, पेज के करो, एंड पे करो, 3-4 लाइंस नीचे छोड़ दो, चलेगा. रफ वर्किंग बोल देना उसको, रफ वर्किंग. ठीक है. तो दिस इज 10 minus 1 9,000. यस, ऐसा ऊपर के तो भी चलेगा क्या? विद इन द जर्नल है ना. क्या होता है, कोई कॉलेजेस अलाउ करते हैं, कोई कॉलेजेस प्रॉब्लम करती हैं. पीछे सब लोग अलाउ करते हैं, इसलिए कॉलेज में पूछ के हम लोग करते हैं. बट अगर पीछे करोगे तो कोई टफड़ा ही नहीं है. नो कॉलेज हैज प्रॉब्लम विद डूइंग द वर्किंग बिहाइंड. तो 1-2 पेज के बाद करो ना, 2-3 पेज में सम हो जाएगा, 3 साइड्स में हो जाएगा, 3-4 साइड्स. उसके पीछे करो. ओके, सम के बाद एंड में, या बीच में हो गया कुछ वर्किंग तो रफ वर्किंग करके बाद में भी सम नीचे कंटिन्यू कर सकते हो. उतना पोर्शन को रफ वर्किंग दे देना, एक साइड को पूरा रफ वर्किंग का नाम दे देना, उधर सब कैलकुलेशन दिखाना, बाद में वापस सम कंटिन्यू कर. नो प्रॉब्लम. ऑलराइट. So, sir, if the payment is made before January end, then we would give CD, right? Yes, then we would give CD. Then cash discount allow करेंगे, वरना नहीं करेंगे. ओके, ये होता है CD टर्म्स का मतलब. ओके, और ऐसे बिजनेस में होता है 15 डे, 1 मंथ, 20 डेज. विद इन 20 डेज पेमेंट करोगे तो CD मिलेगा, विद इन 10 डेज करोगे तो CD मिलेगा. ओके, ये होता ही है बिजनेस में. एंट्री, एक मिनट, एंट्री क्या बनेगी पहले मेरे को एंट्री बोल दो. Mr. Bose account debit to sales account. हाँ, मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. फिलहाल यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट. मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. या व्हाट वाज द डाउट? सर, अगर उसने 25 डेज 20 डेज या 15 डेज पहले दिया तो भी मतलब वो सीडी कांस्टेंट ही रहेगा. सीडी कांस्टेंट ही रहेगा. उसको जनवरी का टर्म्स दे दिया है सीधा. जैन में वो कभी भी आके पैसा दे. ओके, तो कोई भी दिमाग वाला बंदा कभी देगा पैसा? एंड में देगा. एंड में देगा, एंड ऑफ जनवरी देगा. तो जैन 15 को दे, 20 को दे या 25 को दे, सेम सीडी मिलेगा. तो ऑब्वियसली वो लास्ट डेट पे देगा. राइट, करेक्ट. बीइंग गुड्स सोल्ड टू नवीन बोस, सॉरी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बोस at the rate of 10% TD. फिलहाल you are selling on credit. All of you got that? Next one. 6th January. Returned goods worth rupees 1,000 gross to Mr. Naveen since they were of substandard quality. अभी we are returning or Naveen is returning to us? ये पढ़ सकता हूँ. We are returning. Okay. Forum Malavia. Can you tell me, पहले तो journal entry क्या होगा? We are returning the goods. Mr. Naveen account debit to purchase return account. Perfect. And can you tell me at the same time, should I write 1,000 in my amount? Yeah, 1,000. Is it? 1,000 minus TD 10%. 1,000 minus TD of who? Naveen. तो ऊपर 5%. तो 1,000 पे I will subtract TD. ये याद आया आप लोगों को? ग्रॉस होता है तो आपको TD माइनस करना है, याद आ रहा है? परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का TD, सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का TD, TD CD वाले में किया था हमने. तो ग्रॉस अमाउंट मतलब बिफोर TD का अमाउंट है, वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो हमें TD तो माइनस करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा TD भैया? बहुत सारे TD तो ऊपर बोस का था, नवीन का था, कौन सा TD? नवीन से परचेज करते वक्त जो TD माइनस किया वही से परचेज रिटर्न्स के वक्त करो. सेम 5% TD. तो 50 रुपीज माइनस करो, यू गेट 950 रुपीज. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? नाउ ट्राई टू फ्रेम द एंट्री फॉर रिटर्न. मुझे बात बताओ, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कैश पे होता है कि क्रेडिट पे? क्रेडिट पे. क्रेडिट. ओके, सो व्हाट बी योर एंट्री? देखो मैं रिटर्न कर रहा हूं तो नवीन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. परचेज रिटर्न इज लाइक माय इनकम. रिमेंबर, परचेज इज अवर एक्सपेंस, परचेज रिटर्न इज लाइक इनकम. तो एंट्री क्या बनेगी अपनी? मिस्टर नवीन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट.
Mr. Naveen account debit to purchase returns account. What will be the amount? Can you guys tell me? 950 950 rupees after TD. Before TD कहीं पर भी record नहीं होगा. Being goods returned to Naveen. Being goods returned to Naveen. Being goods returned to Naveen. अब जरा नवीन भाई को पकड़ो और मुझे बताओ, नवीन भाई को देखो और मुझे बताओ, बनिए के जैसा सोचो, think like a businessman and tell me how much money are we supposed to still pay to Naveen or are we still supposed to receive from Naveen? What is your thought? नवीन को पैसा देना है कि लेना है? अगर देना है तो कितना देना है? लेना है 750 ही देना है, 750 देना, क्योंकि वो गुड्स वो वापस देना हमको दूसरे. नेट अमाउंट बोलो, पहले तो बोलो नवीन को पैसा देना है कि लेना है, ये बोलो. देना है. क्या सपोज टू पे टू नवीन? ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट? रिसीव कि पे? नेट अमाउंट you are supposed to pay, right? 3600 Because Naveen is our creditor. Who is Naveen? Creditor. How do you determine he is our creditor? If you check over here, we have purchased goods, right? On credit. So we were supposed to pay how much? 4750 to Naveen. Can you all see that? उसके बाद हमने उसको रिटर्न किया है गुड्स, यहाँ पे डेबिट कर दिया उसको, दिख रहा है? तो 950 रुपीज आप ज्यादा दोगे कि कम दोगे, बताओ? कम देंगे. नहीं सर, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो वापस गुड्स मिलेंगे हमको. हाँ, अगर वापस गुड्स मिले तो ना, अभी तक तो मिले नहीं है. तो समझो अभी सेटल करने की बारी आ गई, तो कितना दोगे पैसा? 4,750 minus 950. 3,800. एट प्रेजेंट अगर नवीन अपने घर पे आ गया पैसा लेने को, तो कितना पैसा देंगे हम लोग? 3,800. समझ आ रहा है सबको? आपने जो परचेज किया था माइनस जो रिटर्न कर दिया, उतना पैसा आप काट लो. दैट अग्री? So net how much money you will pay to Naveen? 3,800. Correct? किसी को confusion इस बात में? All of you got this? बढ़िया. 4750 ये देख लेने का, नवीन के एंट्री में अमाउंट देख लेने का. 4750 उसको देना था, माइनस 950 उसको रिटर्न कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट वन 7th को हो रहा है. Paid ₹100 on account of rent as rent to Mr. Shah on behalf of Mr. Rajiv, our creditor. We paid rent to Mr. Shah on behalf of Mr. Rajiv, our creditor. Kashish Sanghvi, can you tell me what journal entry you will pass for this? Kashish. Paid rent to Mr. Shah on behalf of Mr. Rajiv, our creditor. Okay. Urmi Khania, can you tell me what entry you will pass? सर ये सर वैलिडेशन हर एंट्री में लिखना पड़ेगा. एक मिनट. Yeah, Urmi. Cash account debit to Mr. Rajiv. Cash to Rajiv. We are receiving or we are paying? Rajiv. Paying. तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? Rajiv to cash. Rajiv to cash. पैसा is going out. See, the simplest of the entry, there is possibility of silly mistake. घाई मत करो, सोचो. पैसा आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है. Credit what goes out. And Rajiv is the ultimate receiver because on his behalf we are paying. Yeah. What were you asking? There was some doubt in between. सर ये हर में वो मिस्टर और वो सब लिखना जरूरी है? नहीं भाई, खाली नवीन भी चलेगा. Okay. Now. Tell me, राजीव टू कैश लिखना है कि रेंट टू कैश लिखना है कि Rent to cash. शाह टू कैश? राजीव टू कैश. ऑन बिहाफ तो फिर बाकी सब भूल जाने का. ऑन बिहाफ इज द माई बाप. यू आर पेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ राजीव. आपका रेंट नहीं है, समझो इसको. आपने राजीव से गुड्स खरीदा होगा, आपको राजीव को पैसे देने थे 100 रुपए,
तो आप राजीव के घर गए, आपने बोला कि राजीव भाई ले लो आपके 100 रुपए। राजीव भाई बोले कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मेरा मकान मालिक बाजू में है, रुपए दे दो, मेरा रेंट बाकी है वहां पे। मैंने बोला मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे दे रहा हूँ भैया, अपना अकाउंट सेटल। आर यू अंडरस्टैंड? तो मैं डील किसके साथ कर रहा हूँ, राजीव के साथ कि उसके लैंडलॉर्ड के साथ, कि मेरा खर्चा है राजीव। राजीव के साथ। जस्ट इमेजिन करोगे, अपने आप आंसर आ जाए। राजीव वॉज अवर क्रेडिटर, उसको सेटल कर रहे हैं आप। तो एंट्री क्या बनेगी? राजीव। सर रेंट देना बाकी होगा तो भी वो क्रेडिटर बनेगा कि सिर्फ ऐसा गुड्स के उसमें रहेगा? नहीं, रेंट देना बाकी है तो क्रेडिटर बन सकता है, बराबर है, बट ये काय का है? ऑन बिहाफ ऑफ राजीव है ना, लैंडलॉर्ड इज नॉट राजीव। रेंट देना बाकी होगा तो वही लैंडलॉर्ड हो जाता है। गॉट इट? बट हम उसको रेंट ही दे रहे हैं ना। रेंट दे रहे हैं लेकिन उसके बिहाफ पे दे रहे हैं, अपना रेंट नहीं है। ऐसा दिया होता पेड रेंट टू अजय टू अनिल ऑन बिहाफ ऑफ अवर लैंडलॉर्ड मिस्टर राजीव, तो फिर रेंट टू कैश आ जाता। राजीव इज नॉट अवर लैंडलॉर्ड, रेंट के लिए वो स्पेसिफाई करके देगा। क्रेडिटर का हम लोग मतलब राजीव का रेंट दे रहे हैं उसको। हाँ, राजीव का रेंट दे रहे, तो राजीव को, हमें तो राजीव को पैसा देना बाकी था। आर यू गेटिंग इट? बट राजीव हैड टू पे दिस रेंट टू समवन, हिज लैंडलॉर्ड अनिल, तो हमने उसके बिहाफ पे दे दी। राजीव वाज अवर क्रेडिटर, मतलब ही वाज अवर क्रेडिटर फॉर गुड्स, कुछ नहीं दिया तो मतलब इज फॉर गुड्स। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑन बिहाफ दिख जाए तो फॉरगेट एवरीथिंग, बाकी कोई काम नहीं अपना, कुछ काम का है ही नहीं वहां। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विल बी 100 रुपीज। ओके, ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आया? राजीव को रेंट नहीं देना है हमें, राजीव अपना लैंडलॉर्ड नहीं है, हम तो राजीव को गुड्स का पैसा देने गए। राजीव ने बोला मेरा रेंट बाकी है, उसको दे दो भैया, अनिल को पैसा दे दो। गॉट इट? सो बीइंग रेंट पेड ऑन बिहाफ ऑफ राजीव, rent So paid sir, yesterday you said that it is the petty cash and the petty accounts are dependent on the monetary value. So Right. here it is 100 rupees. So can we put it in petty cash? How do you know that 100 is the big value or small value for this business? You don't know. और इसमें तो वैसे भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये आप सेटल कर रहे हो, वो एक्सपेंस और इनकम के लिए होता है। पेटी कैश वाला पार्ट है ना, एक्सपेंस और इनकम के लिए होता है। यहाँ पे आपको वो अंदाजा लगाना ही नहीं है 100 इज स्मॉल 1000 इज बिग। तुमको है ना, कभी कोई ट्रांजैक्शन में 50 रुपया रहेगा, किसी में 50,000 होगा। डोंट लुक एट द वैल्यू। ओके, तो पेटी कैश का असम्पशन तुम्हें यूज ही नहीं करना है। इधर फिलहाल जर्नल में क्लीनिंग स्वीपिंग चार्जेस है तो पेटी कैश में डालो, मतलब सन्ड्री एक्सपेंस में डालो, बाकी सबके लिए सेपरेट हेड ही है। पोस्टेज सेपरेट हेड, प्रिंटिंग स्टेशनरी सेपरेट हेड, रेंट सेपरेट हेड, टेलीफोन सेपरेट हेड, कैरेज सेपरेट हेड, सब सेपरेट है। ओके, इधर अमाउंट का अंदाजा नहीं लगाना है। गॉट इट? देन seventh one this was, date लिख देना। next one, issued a check of rupees 3750 in full settlement to Mr. Naveen। वापस आ गया नवीन। Discount received. 50 rupees। बत्ती चमका नवीन Discount का। received अभी हमने डिस्कस किया था। जस्ट नाउ वी हैड डिस्कस्ड कि नवीन को कितना पैसा देना बाकी था। हाउ मच आर वी सपोज्ड टू पे टू नवीन? 3800। 3800। देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिकल प्रोसेस है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। मिस्टर नवीन कौन है? मिस्टर नवीन क्रेडिटर है कि डेटर है? तो क्रेडिटर है, ये पता होना चाहिए आपको। कैसे पता चला इज अ क्रेडिटर? क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है उससे, तो पैसा देना बाकी है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने गुड्स खरीदा है, पैसा देना बाकी है, तो इज योर क्रेडिटर, राइट? भी प्रॉब्लम में आपको ये ढूंढना है कि हाउ मच आर यू सपोज टू पे टू क्रेडिटर या हाउ मच आर यू सपोज टू रिसीव फ्रॉम अ डेटर। मैकेनिकल फॉर्मूला है, देख लो। क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, हाउ टू फाइंड आउट? सिंपली डू क्रेडिट
माइनस डेबिट। क्रेडिटर को कितना पैसा देना है कैसे ढूंढोगे आप? क्रेडिट माइनस डेबिट करके। किसका क्रेडिट माइनस डेबिट? नवीन का। तो नवीन का ट्रांजैक्शन देखो, हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है नवीन के। कैन यू ऑल सी दैट? ये है 4th वाला और ये है 6th वाला। तो नवीन के क्रेडिट में कितना दिखाई दे रहा है आपको? कैन यू सी दिस? नवीन के क्रेडिट में आपको दिख रहा है 4750। तो 4750 माइनस नवीन के डेबिट में कितना दिख रहा है आपको? नवीन के डेबिट में दिख रहा है 950। तो माइनस 950। तो 4750 माइनस 950 इज व्हाट? 3800। 50 रुपीज। इतना पैसा अपने को नवीन को देना बाकी है। समझ में आई बात? कभी भी आपको ढूंढना है एनी पर्सन हु इज योर क्रेडिटर, उसको कितना पैसा देना बाकी है। हाउ विल यू फाइंड आउट? सिंपली डू क्रेडिट माइनस डेबिट। सिंपली डू व्हाट? क्रेडिट माइनस डेबिट। अगर यही आपको अगर ढूंढना है कि डेटर से कितना पैसा लेना बाकी है, तो क्या करोगे आप? डेटर से कितना पैसा लेना? डेबिट माइनस डू डेबिट माइनस क्रेडिट ऑफ दैट डेटर। यू विल अराइव एट व्हाट मनी यू आर सपोज्ड टू गेट फ्रॉम दैट डेटर। सिंपल। अंडरस्टूड? तो क्रेडिटर को कितना पैसा देना है कैसे ढूंढोगे? क्रेडिट माइनस डेबिट। और डेटर से कितना पैसा लेना? हाउ विल यू फाइंड आउट? हाउ मच आर यू सपोज्ड टू रिसीव फ्रॉम डेटर? डेबिट माइनस क्रेडिट। तो मैंने देखा कि मुझे नवीन को कितना पैसा देना बाकी है। हाउ मच एम आई सपोज्ड टू पे टू नवीन? 3800. Now check in the transaction. Are you 3800? No, sir. You are paying in No. 3750 50. in full settlement. कुछ क्लिक हुआ? In full settlement. Discount Discount received received. आएगा. Discount received. So can you tell me the entire entry with discount? Mr. Naveen's account debit to bank account to discount received account. बैंक की कैश? सर बैंक आएगा, चेक क्यों है? चेक इश्यू किया है तो बैंक। बैंक। तो नवीन अकाउंट डेबिट, मिस्टर नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो एंट्री समझ में आ गया होगा। नवीन टू बैंक, नवीन को पैसा दे रहे हैं हम लोग, वी आर सेटलिंग हिम, तो नवीन इज द रिसीवर एंड चेक इज गोइंग आउट टू बैंक। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा कि अलाउड होगा बताओ? Received होगा Because we are getting we are getting that because we are paying less, that's our income, so credit all incomes and gains। याद आया? पहले भी किया हमने। so to discount received account, और डिस्काउंट का शॉर्टकट भी बताया आपको। the way the cash goes the way the discount, कैश बैंक क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा, कैश बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट ही होगा। ओके तो कितना होगा? अभी नवीन को कितना पैसा देना बाकी है? 3800। ओके यस, माया एंड कशिश, यू कैन माया एंड कशिश। ओके नाउ नवीन को कितना देना है? 3800। थैंक यू सर। वेलकम। सो नवीन को देना था 3800 टू बैंक विल बी 3750। तो डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी 50 rupees। इज दैट क्लियर? Can you apply modern concept on this? Modern concept. Who was Naveen? Creditor. Naveen was the creditor. Creditor. सर वो डिक्रीज हो रहा है। Liability की asset. Liability. Liability decrease so debit. Decrease so credit. Liability decrease so Credit. नहीं डेबिट। Liability decrease हुआ तो डेबिट। बैंक पैसा गया। Asset decrease so डिक्रीज credit. हुआ तो क्रेडिट। Credit. And discount received is income. इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। Credit. Is that clear? Liability decrease so Credit. debit, bank decrease, asset decrease so credit, and income increase so credit. Understood? All of you got this settlement part? पक्का समझ में आया सबको? रिया, रुचि, यशवी, रुद्र, हीत, कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? पहले तो हाउ टू कैलकुलेट कितना पैसा देना है, यू हैव टू डू क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, बिकॉज ही वाज अ क्रेडिटर। तो देना था 3800। व्हाट इफ आई वुड हैव पेड हिम फुल 3800? तो मैं क्या एंट्री करता? नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नवीन टू बैंक, नवीन टू बैंक पूरा पैसा दे दिया, बराबर है। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं दिया। बीइंग चेक पेड
So can't we combine the entry of 6th and 8th one? 6th and 8th, how can you combine beta? Two different dates. Same date पे होना जरूरी है to combine an entry. And there must be a common debit or a credit in the account. Got it? एक ही डेट सेम डेट पे होना जरूरी है एंड कॉमन डेबिट और क्रेडिट रहेगा अकाउंट का, तो आप क्लब करो, वरना मत करो. ठीक है. बीइंग चेक पेड टू नवीन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सेम डेट पे होना जरूरी है, याद रखना. देन 8th पे एक और हो रहा है. Placed an order with Mr. Ravi Traders for goods of 2000. Placed an order. No entry. No entry. No entry. आपको समझ आया? Are we buying the goods yet? No, sir. खाली उसको ऑर्डर दिया, आपने जोमेटो पे ऑर्डर दिया, खाना लेके आओ भैया, कैश ऑन डिलीवरी है, खाना लेके आओ, ये होटल से ऑर्डर दिया, अब होटल वाले ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ. तो कोई एंट्री आएगी इसकी? कुछ नहीं आएगी. देखो एंट्री कब आएगी? जब एक्चुअली आप गुड्स परचेज करोगे या फिर आप उसको पेमेंट करोगे, तभी एंट्री आएगी. अभी तो खाली ऑर्डर दिया है उसको. तो रिसीव्ड एन ऑर्डर या प्लेस्ड एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, sir, but over here, if it would have been placed an order with for goods at 10% TD, so then it would have been recorded, no? Still placed an order है ना बॉस. अभी तो खाली ऑर्डर प्लेस किया है. क्या आपके गुड्स अराइव हुए हैं? क्या आपने गुड्स खरीदे हैं? नहीं, ऑर्डर प्लेस किया है. अब वो ट्रेडर के पास गुड्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उसके पास अवेलेबल होंगे तो वो डिस्पैच करेगा, तब आप खरीदोगे, तब एंट्री आएगी. लेकिन गुड्स ही नहीं है तो यार ऑर्डर कैंसिल कर देगा वो आपका. समझ में आई बात? तो प्लेस्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर, उसका कोई एंट्री नहीं होता. ठीक है. देखो बिजनेस में कैसे काम चलता है ये आपको समझाता हूँ. देखो समझो मैं बायर हूँ एंड हर्षिता इज द सेलर. आई एम द बायर, हर्षिता इज द सेलर. ठीक है. तो मैं पहले एज अ बायर मैं क्या करूंगा, मैं इंक्वायरी फॉर्म भेजूंगा हर्षिता के पास. सपोज वी आर इनटू पेंट बिजनेस, हर्षिता इज द होलसेलर, आई एम द रिटेलर. पेंट बिजनेस में पेंट के डब्बे बेचते हैं. तो मैं हर्षिता को पहले इंक्वायरी भेजूंगा, क्या आपके पास ये कंपनी का पेंट है, एशियन पेंट्स का पेंट है, बर्जर पेंट का पेंट है, ये कलर है कि नहीं. इसको बोलते हैं इंक्वायरी. इंक्वायरी भेजूंगा. ठीक है. तो हर्षिता मुझे ब्रोशर कैटलॉग भेजेगी, उसके बिजनेस का ब्रोशर्स और कैटलॉग भेजेगी. ठीक है. तो उसमें उसकी सब डिटेल होगी कि ये कलर के पेंट अवेलेबल है, ये प्राइस है. ठीक है. फिर उसके बेसिस पे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा. आई विल प्लेस एन ऑर्डर विथ हर्षिता कि मुझे एशियन पेंट्स का सो एंड सो ट्रैक्टर इमल्शन जो भी नाम है उसका मुझे रेड कलर का 50 लीटर पेंट चाहिए. दैट इज एन ऑर्डर. ओके. फिर हर्षिता मुझे बोलेगी कि हाँ ये अवेलेबल है, फिर वो सप्लाई करेगी. तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, तब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. फिर वो जब सप्लाई करेगी मुझे 50 लीटर ऑफ पेंट, तभी मैं एंट्री करूंगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्षिता's अकाउंट, व्हाटएवर इज द अमाउंट, लेट अस से 50,000. फिर मैं हर्षिता को पेमेंट करूंगा. क्रेडिट पे खरीदा ऑब्वियसली, एक महीने बाद उसको पेमेंट करूंगा, तभी हर्षिता टू बैंक 50,000 रुपीज. दैट विल कंप्लीट द ट्रांजैक्शन. इज दैट क्लियर? तो पहले इंक्वायरी भेजी जाती है, फिर कैटलॉग ब्रोशर आते हैं, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो. तब तक कोई एंट्री नहीं हो रही है, तब तक बातचीत चालू है. जब एक्चुअली गुड्स खरीदोगे और एक्चुअली पेमेंट करोगे तब एंट्री होगी. इज दैट क्लियर? समझ में आया बात? इस बीच में आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, या उसका ब्रोशर कैटलॉग का एक्सपेंस हो गया, या ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो गया. तो ये खर्चों की एंट्री आएगी, ये एक्सपेंस की एंट्री आएगी, लेकिन परचेज सेल की कोई एंट्री नहीं आने वाली है. इज दिस क्लियर? अभी यहाँ पे तो ऑर्डर ही प्लेस्ड है, तो नो एंट्री लिख देना. राइट डाउन नो एंट्री. नो एंट्री since order placed is not a transaction, hence no entry. Since order placed is not a transaction, hence no. Sir, if we don't write since, is it okay? नहीं, you have to write. कॉलेज मार्क्स काटता है इसका, 1 मार्क उड़ा देगा सीधा. सर वो सिंबल करेंगे तो चलेगा?
सिंबल नहीं, पूरा मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है. नो एंट्री since placing an order is not a transaction, hence no entry. Okay, write a note for no entry. नहीं तो मार्क्स गया, एक मार्क्स फुकट का गया, एक लाइन का एक मार्क है यार. चलो 9th one. Goods lost by fire amounted to 5,000. We made a claim with insurance company for 4,750, but they admitted a claim of 4,500. First question. पहले तो कौन सा क्लेम कंसिडर करोगे आप? 4,745. अपना क्लेम को क्या करने का? इग्नोर करने का. अपना क्लेम का कोई वैल्यू नहीं है. ये समझ में आ गया सबको? ओके, विराली दोषी, कैन यू टेल मी व्हाट एंट्री यू विल पास फॉर दिस? हमने किया हुआ है पहले भी. विराली. Lost by fire account debit, insurance company account debit to goods lost by fire account. परफेक्ट है. देखो टोटल गुड्स कितने के लॉस हुए हैं आपके? 5,000 के. उसमें से क्लेम कितना मिलने वाला है आपको? हाउ मच क्लेम आर वी गोइंग टू गेट? 4,500. अब देख के बताओ, इज इट क्लेम रिसीव्ड या क्लेम एडमिटेड? क्लेम एडमिटेड का मतलब क्या? मिलना बाकी है. तो कौन सा अकाउंट आएगा? इंश्योरेंस कंपनी आएगा कि कैश आएगा? इंश्योरेंस कंपनी आएगा. तो परफेक्ट. तो पूरा एंट्री क्या बनेगा आपका? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपनी या क्लेम कुछ भी लिखो, कंपनी अकाउंट या क्लेम अकाउंट, बोथ आर सेम. पर्सनल डेटर, पैसा मिलना बाकी है. टू गुड्स जा रहा है बिजनेस में से, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट. अभी आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, लॉस बाय फायर में व्हाट अमाउंट यू विल राइट? 500. एक्चुअल लॉस इज 500. 4,500 in insurance. 4,500 in company. Goods lost by fire 5,000. गुड्स टोटल गया 5 का. समझ में आई बात? गुड्स गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लॉस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कंपनी डेबिट द रिसीवर. पैसा लेना बाकी. या मॉडर्न कंसेप्ट, लॉस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट. एसेट बढ़ा, इंश्योरेंस कंपनी इज एन एसेट. हाउ इट इज एन एसेट? कैन यू टेल मी व्हाई इंश्योरेंस कंपनी इज एन एसेट? डेटर है, पैसा लेना बाकी है. एंड गुड्स एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, गुड्स एसेट कम हो गया तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? Sir, if we would have received the money, then what would be the entry? If you would have received the money, immediately रोकड़ा आ गया तो क्या एंट्री करोगे? तो ये डेटर के जगह क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट. कैश के जगह बेटर राइट बैंक. कैश अकाउंट. बैंक. क्योंकि क्लेम्स आर सेटल्ड थ्रू बैंक. आपको कभी भी कोई क्लेम का पैसा रोकड़े में नहीं देता अभी कंपनी. जैसे शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू होता है ना, वैसे इंश्योरेंस का सब काम बैंक के थ्रू होता है. तो चेक आ जाएगा, डायरेक्टली मनी विल गो इन द बैंक. गॉट इट? अगर इमीडिएटली पैसा आता तो, अभी इधर इमीडिएटली नहीं आया, इधर मिलना बाकी है, तो डेटर अकाउंट डेबिट. अंडरस्टूड? नरेशन लिखना, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड. Being goods lost by fire and insurance claim admitted. Insurance claim admitted, yes. यहाँ पे अगर इंश्योरेंस कंपनी हमको 5,000 का क्लेम देती तो लॉस बाय फायर अकाउंट नहीं आता ना? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता. फिर सीधा क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पूरा पैसा मिलना बाकी है. और पूरा आ जाता तो बैंक टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर. लॉस हुआ ही नहीं. परफेक्ट है. पूरा क्लेम मिल गया तो लॉस होगा ही नहीं आपका. करेक्ट? ओके. 10th वन, परचेज्ड 50 शेयर्स. वापस शेयर्स खरीदा. शेयर्स खरीदा है तो टेंशन नहीं लेना है. शेयर्स मतलब क्या? एसेट. एसेट आया और बैंक से पैसा जाएगा. थंब रूल. परचेज 50 शेयर्स ऑफ ऑल सीजन्स फूड्स लिमिटेड फॉर 9 rupees each. फेस वैल्यू इज ₹10.
पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%। मुझे बात बताओ, आपने वो शेयर्स 9 में खरीदे कि 10 में खरीदे? 9 में। 9 रुपीज में खरीदे, 9 रुपीज परचेज एट 9 रुपीज। तो 50 इंटू 9 450। तो वो एफवी क्या है, फेस वैल्यू क्या है? वो देखो कॉस्ट फेस प्राइस है जो वैल्यू का मार्केट में गम्मत कंपनी ने ये प्राइस रखा है, पर कंपनी ने जो आपने प्राइस में खरीदा है जीपीओ वो में रखा है। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, फेस वैल्यू जो होता है इज द बेसिक ब्रेकअप। जब बेसिक इश्यू आता है ना कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब कंपनी को एक फेस वैल्यू डिसाइड कर लेती है। ओके, सुनना ध्यान से। जब ओरिजिनल होगा मार्केट में, तब एक फेस वैल्यू डिसाइड करके वो शेयर्स मार्केट में लाती है। ठीक है, फेस वैल्यू बेसिक ब्रेकअप है कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। फेस वैल्यू सिर्फ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसका कोई काम नहीं है, कहीं पर भी एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा फेस वैल्यू, इग्नोर करना है। सिर्फ एक यूज होता है फेस वैल्यू का। क्या यूज होता है आपको पता है? जो इंटरेस्ट या जो डिविडेंड कंपनी देती है ना, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। दैट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। बेसिक ब्रेकअप होता है जब कंपनी शुरू में शेयर्स मार्केट में लाती है, तभी उसकी फेस वैल्यू डिसाइड हो जाती है 10, 100,000। वो बेसिक ब्रेकअप होता है, उस भाव पे शेयर्स वो इश्यू करके रख देगी। ठीक है, बाद में मार्केट में तो भाव चेंज होते रहता है। अभी आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस कंपनी का जो शेयर्स है, मुकेश अंबानी, अभी सुना होगा सबने, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज। उस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, लेकिन उसका भाव चल रहा है अभी अराउंड 2100 रुपीज। कितना चल रहा है? 2100। तो मार्केट में भाव चेंज होते रहता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई। कभी डिमांड बढ़ गई तो भाव बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ गई तो भाव घट जाएगा। ये डिमांड और सप्लाई किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? कंपनी की अर्निंग्स पे डिपेंडेंट रहता है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो मार्केट में उसका शेयर का भाव बढ़ेगा। कंपनी अगर लॉस करेगी तो मार्केट में शेयर का भाव घट जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो रिमेंबर दिस, शेयर का भाव चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आप जब शेयर प्राइस खरीदोगे, आपने सीएनबीसी पे पट्टी देखा होगा, घूमते रहता है, कभी कभी देखा होगा, वो मार्केट प्राइस रहता है। आपको खरीदना है तो आपको वो प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू को इग्नोर मारने का, क्या मारने का? इग्नोर। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इग्नोर, कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला। एक काम का है फेस वैल्यू, किसके काम का है? कंपनी का काम का है। कंपनी जब भी डिविडेंड देगी या इंटरेस्ट देगी ऑन बॉन्ड्स, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इसीलिए वो फेस वैल्यू को रखा है, और कोई काम नहीं है फेस वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो फेस वैल्यू कोई काम का नहीं है। आपने जो भाव पे खरीदा, आपने जो भाव पे बेचा, वो प्राइस आपको रिकॉर्ड करनी है। तो 50 इंटू 9 होता है 450 रुपीज। ठीक है, अब ब्रोकरेज कितना है? उस पर 2% ऐड करोगे कि लेस? ऐड परचेज के वक्त हो रहा है तो ऐड ब्रोकरेज, सबको पता है ये। ऐड ब्रोकरेज 2% कितना होता है? 9 रुपीज। तो टोटल खरीदने का वैल्यू हो गया 459। ये समझ में आया? Will you have any separate entry for brokerage or you will add it up to shares? Added up to Added up to shares. added up to brokerage would be added up. Expense on purchase of shares, one time expense. Tell me what is the entry for this? Investment in shares account debit Debit to bank account. Investment in shares account debit to bank account. कितना लिखोगे? 459. 459. 459 being shares purchased and brokerage paid. Being shares purchased and brokerage paid. समझ आ गया सबको? ब्रोकरेज परचेज के वक्त हो रहा है तो ऐड, सेल के वक्त हो रहा है तो सबट्रैक्ट। और इन्वेस्टमेंट खरीदते वक्त थंब रूल याद रखना, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा जा रहा है, बस। अभी क्रेडिट पे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा कैसे? चेक से जाएगा। और कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? तो मार्केट वैल्यू, जो प्राइस पे खरीदा, जो प्राइस पे बेचा।
फेस वैल्यू कहीं पर भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं, बताइए मुझे। फेस वैल्यू कहीं पर भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं? नहीं बेटा, नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो क्या मैं 10 रुपए में खरीद सकता हूँ? कोई देगा मुझे 10 रुपए में? पागल है क्या कोई? मार्केट में 2100 का प्राइस चालू है, तो मार्केट प्राइस पे खरीदो। यस बोलो सर। अभी अगर मुझे शेयर्स बेचना है तो वो प्राइस मैं डिसाइड करूंगा कि मार्केट? हाँ, बेच रहे हैं, देखो नेक्स्ट लाइन पे दिया हुआ है। हाँ सर, तो वो प्राइस जो मुझे बेचना है जो प्राइस पे, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मार्केट डिसाइड करेगा। देखो आप खरीदना है मार्केट में जाके, आप बोलोगे टमाटर वाले को क्या भाव दिया, वो बोलेगा 25 रुपया किलो, तो आप क्या बोलोगे, मैं 10 रुपया किलो दूंगा, वो बोलेगा जाओ घर पे, नहीं परवड़ेगा, बराबर है। आप बोलोगे चलो मैं 20 रुपया किलो दूंगा, बोलेगा चलो 22 रुपया किलो में डन करते हैं। तो आपने अल्टीमेटली क्या भाव पे खरीदा? 22 रुपीज पर केजी। सेम वे यू विल बाय एंड सेल शेयर्स। आप एक प्राइस कोट कर दोगे कि मुझे ये शेयर्स समझो 10 रुपए के हैं, मुझे 12 रुपए में बेचने हैं, तो आप प्राइस कोट करके डाल दोगे। ओके, बोल्ट पे ट्रेडिंग होती है ब्रोकर के पास, तो आप 12 रुपए कोट करके डाल दोगे। सामने वाली पार्टी रेडी होनी चाहिए 12 रुपए में खरीदने के लिए। वहां से अगर 12 रुपए का कोट नहीं आ रहा है तो आपका डील होगा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आप टमाटर सब्जी ब्रेड पाव डिसाइड करते हैं ना, मतलब जो रखना है सपोज 12 रुपए भाई, हाँ वो तुम डिसाइड करो, लेकिन सामने वो कोई बायर आना चाहिए 12 रुपए में, तो आप सेल कर सकोगे 12 में। समझ में आया? कोई बायर ही नहीं है तो आपको अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, 11 रुपीज करना पड़ेगा, तो वो बायर आपका 11 रुपीज में खरीद लेगा। वैसे यहाँ पे देखो हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दिस इज द लास्ट वन फॉर द डे, sold the above shares at 11 rupees. Can you all see that? Sold the above shares of 11. अभी आपने प्राइस डाल के रखा था 15, मैं तो 15 रुपए में बेचूंगा, 15 रुपए में बेचूंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, साला कोई खरीदने आ ही नहीं रहा है 15 रुपए में। शेयर का प्राइस तो 11 रुपीज ही चल रहा है, मतलब बायर्स आर नॉट विलिंग टू पे मोर देन 11 रुपीज फॉर योर शेयर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाउ इज द प्राइस डिटरमाइंड? प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? Price is the result of demand and supply. Simple. Price of any commodity is the result of demand and supply. किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस घटेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई भी चीज, गोल्ड बोलो, अभी गोल्ड को आपने देखा होगा प्राइस बढ़ते जा रहा है। सिल्वर, गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया है? 70,000, 65, 60,000 गोल्ड हो गया, 80,000 सिल्वर हो गया था। Yesterday only 2000. हाँ, अभी क्या? हाँ, तो तभी क्या थी? डिमांड बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? सबको डर रहा था कोरोना कब तक रहेगा, इससे अच्छा पैसा गोल्ड में डालो, सेफ रखो। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही थी, इसलिए प्राइस बढ़ रहा था गोल्ड का। फिर कोविड का वैक्सीन आने का न्यूज आ गया, रशिया ने बोला मैंने वैक्सीन इन्वेंट कर लिया, तो रशिया ने बोला अभी कोविड की वैक्सीन मिल जाएगी, सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो सबका फियर निकल गया। सब लोग ने बोला अभी क्या, कोई टेंशन नहीं, निकालो गोल्ड को बेच दो, सिल्वर को बेच दो, तो सेलर्स बढ़ गए। सेलर्स बढ़ गए तो भाव क्या हो जाएगा? घटने का चालू हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? आपको मोबाइल खरीदना है और एक ही दुकान में वो मोबाइल मिलता है, तो झक मार के आपको 20,000 रुपए में खरीदना पड़ेगा। लेकिन 10 दुकान में वो मोबाइल मिलता है, तो ऑब्वियसली आप 19,000, 18,000 बार्गेन करके खरीदो। बट सर अभी तो इकोनॉमी कोरोना की वजह से पूरा मतलब कम हो गया था सब लोग का इनकम, तो फिर वो लोग ने गोल्ड कैसे खरीदा? अरे भाई सबका थोड़ी कम हुआ है, Initially तो ज्यादा था। lopsided था, it was a lopsided. The most affected people were the middle class, lower middle class and the गरीब people. Upper middle class and all, उनका तो पैसा किधर रहता है? मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स में रहता है, इधर इन शेयर्स और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी का वैल्यू थोड़ा कम हुआ, बट रेंट मिल रहा है उनको, या फिर शेयर्स में रहता है, या बॉन्ड्स में रहता है, या बैंक के एफडीज में रहता है, वहां से तो पैसा आने लग रहा था। सर बड़े बिजनेस इसका तो वर्क फ्रॉम होम भी चालू ही था ना। वर्क फ्रॉम होम भी चालू ही था कंपनीज का, उनको भी पैसा मिल रहा था। लॉपसाइडेड हो गया था, जिसको जिसको मिल रहा था वो लोग सब पैसे डाल रहे थे। ओके सर, एक मिनट में कोई एंट्री करने दो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एंट्री फॉर सेल, डाउट थोड़ा याद रखो, मैं करता हूँ डिस्कस। ये कनेक्टिंग है ना, इसके लिए लिंक टूट जाएगा नहीं तो।
हमने खरीदा था शेयर्स कितने में 459 में, दिख रहा हो लास्ट ट्रांजैक्शन 10th वन. द अबव शेयर्स वर सोल्ड फॉर 11. तो कितने शेयर्स हम लोग बेचेंगे बताओ मुझे. हाउ मेनी शेयर्स आर वी सेलिंग? 50 शेयर्स क्या भाव पे बेच रहे हैं? 11 रुपीज. हो गया 550. अच्छा प्लस 2% ब्रोकरेज नहीं है बताओ मुझे. इस पे ब्रोकरेज का दिया है. ब्रोकरेज नहीं दिया है. नहीं तो दिया है ना कैलकुलेट नहीं क्वेश्चन होगा में. ना. तो कैलकुलेट नहीं होगा, इग्नोर मारने का. क्वेश्चन में है तो ब्रोकरेज लेना, नहीं है तो सिंपली इग्नोर इट. इज दैट क्लियर? तो 550 में बेचा. दिस इटसेल्फ इज माय सेल वैल्यू. अब मुझे बताओ एंट्री कैसे करोगे? उल्टा कर देंगे लास्ट वाला. बैंक अकाउंट डेबिट टू उल्टा कर इन्वेस्टमेंट. देंगे. बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू शेयर्स. अच्छा प्रॉफिट लॉस करोगे कि नहीं? प्रॉफिट आएगा ना. प्रॉफिट भी आएगा. प्रॉफिट सेल ऑफ शेयर्स. प्रॉफिट है. कितने का प्रॉफिट है? कितने का प्रॉफिट है? How will you calculate the profit? Simple. बिजनेसमैन का लॉजिक. 550 में बेचा, 459 में खरीदा, तो 91 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. सिंपल. सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट टू profit on sale of shares account. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर. मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा मिला, रोकड़ा कितना मिला अपने को? हाउ मच मनी डिड वी गेट इन बैंक? 550. 550. हाउ मच शुड आई राइट इन शेयर्स? कितने का गया शेयर्स? 459. सबको समझ आया? ये कैलकुलेशन रिलायंस वाला भी किया था हमने 12th सम में. ओके 13th में भी किया था. एंड प्रॉफिट कितने का था? 459 का बेचा 550. एसेट और शेयर्स पे आप प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हो, गुड्स पे नहीं करते हो. ठीक है. एसेट और शेयर्स पे हर बार यू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, गुड्स पे नहीं करना है क्योंकि गुड्स का ट्रांजैक्शन घड़ी घड़ी होता है. तो ईयर के एंड में तो वेरी फ्रीक्वेंटली. तो गुड्स पे नहीं करना है, लेकिन शेयर्स और एसेट पे जरूर करोगे. बीइंग शेयर्स sold at profit. Now what was the doubt? Tell me. सर हम लोग गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं कि गोल्ड डीड्स पे इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड का है ना बहुत सारा फॉर्म्स है. अभी पहले फिजिकल होता था, अभी तो बहुत सारा वैरायटी है. आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड्स होता है, आपका गोल्ड वारंट होता है, फिजिकल डीमैट भी है अभी. मतलब आपको फिजिकल नहीं चाहिए तो आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हो गोल्ड के. योर विश. जैसे खरीदना है आप गोल्ड खरीद सकते हो. किसी को रिस्क लगता है ना फिजिकल गोल्ड रखना, इतना सारा गोल्ड कहाँ रखेंगे, वो डीमैट फॉर्म में खरीद. जैसे आप शेयर्स डीमैट फॉर्म में खरीद सकते हो ना, वैसे आप गोल्ड भी डीमैट फॉर्म में खरीद सकते हो. बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो. आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, वो भी खरीद सकते हो. तो प्राइस बढ़ेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा. गोल्ड बॉन्ड्स बेच के आप पैसा ले सकते हो वापस. Got it? So that's about it. We stop at this point. Any other doubts? Anyone till this transaction? सबसे इंपॉर्टेंट नवीन वाला था. नवीन वाला समझा सबको? इसमें क्रेडिट माइनस डेबिट डिस्काउंट करके उसको सेटल किया था हमने. कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? यस. तो योर वी आर स्टॉपिंग. कल आपका लेक्चर नहीं है, कल छुट्टी है. आपको होमवर्क अगर होगा तो मिल जाएगा. होमवर्क आ जाएगा ग्रुप पे. कीप ऑन रिवाइजिंग. If you still have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. We meet on Monday. You can leave us early. Bye, sir. Thank you, sir. क्या होगा Monday क्या है? Monday NF का first test is coming out. That is That's right. at 1 o'clock, na? 11 o'clock. It's at 11. Okay. So I'll leave you by 11. No problem. सर नेक्स्ट चेक कैसे करना